So chemical reactions are classified into 4 types with the nature and number of reactants and the products. The classification is based on the number of reactants and the products and the nature of the reaction. So the first reaction is combination reaction. If you will see, it is saying that due to heating, HCl vapors, that is hydrogen chloric vapors, started coming. Okay, ये किसी experiment के बारे में बोल रहे हो लोग. Okay, 1 second, guys. So this reaction NH3 is ammonia. I hope you all know. HCl is hydrogen chloride, but it is also known as, अभी को gaseous state में ना, इसलिए उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं लोग. अगर ये लिक्विड स्टेट में होता ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Very good. It is saying that when NH3 and HCl, that is ammonia and hydrogen chloride, are reacted, NH4Cl is formed. Now let us read. It is saying due to heating, HCl vapors started coming out from the test tube when NH3 gas came out from the solution on the glass rod. The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form the salt ammonium chloride in the gaseous state. First, but immediately due to the condensation process at room temperature, it got transformed into the solid state as a result while smoke was formed. Okay. So they are saying that condensation process is occurring, and since the reaction is taking place at room temperature, the solid state ammonium chloride is formed. Then they have a second reaction where magnesium and oxygen are reacting to form magnesium oxide. This reaction you will probably do in Lynn. You have any doubt? You have raised your hand. फिर इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा रहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज गेटिंग रिलीज्ड. ओके, नाउ डेफिनेशन अभी दिया उन लोगों ने कि when 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. combine हो रहा है इसलिए combination. देखो दो reactant है, फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वन. हीट को प्रोडक्ट नहीं मानो. फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये फॉर्म कर रहे हैं मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन is forming magnesium oxide. Here also this both are combining and forming ammonium chloride. So 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर है और वो प्रोडक्ट में साइड में रिएक्टेंट अगर है और वो प्रोडक्ट साइड में अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर तुम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ो तो इट इज डीकम्पोजिशन. इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते तो एक प्रोडक्ट होता था. And if you will see in decomposition, this is the molecular formula of sugar, C12H22O11. इसमें सुगर खुद डिकम्पोज होकर 2 सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन और दूसरा H2O. Okay, so we are having a single reactant sugar and it gets divided into 2 substances, that is carbon and H2O. That is why it is called as decomposition reaction. And definition देख लो, the reaction in which there is only one reactant giving rise to 2 or more product is called decomposition reaction. Okay, now we saw in the above activity that calcium carbonate undergoes decomposition reaction and carbon dioxide gas form turns the lime water milky. तो कार्बन कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देता है. द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, द कैल्शियम ऑक्साइड जो कि पाउडर होता है, रिमेन्स बिहाइंड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब. ये सब लैब्स में करवाएंगे, तुमको नहीं करवाएंगे तो तुमको ध्यान में रखना होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन में जाता है, व्हेन यू हीट इट, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज इन सॉलिड स्टेट. व्हेन यू हीट इट, इट रिलीजेस CO2 गैस. अब ये CO2 है, कैसे पता करोगे? लाइम वाटर से इसको पास कर दो. अगर लाइम वाटर से पास हुआ और लाइम वाटर मिल्की हो गया मतलब ये CO2 गैस. मिल्की हो गया मतलब मिल्क कलर का हो गया. ओके,
ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक पीछा करेगा अगर साइंस लोगे तो। इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, calcium oxide and carbon dioxide is formed. Okay, and similarly this is called hydrogen peroxide. See, hydrogen peroxide ये तो naturally ही slow decomposition में चला जाता है. It is by result, like by nature only it once again so by nature इसको react भी करने का जरूरत नहीं है. ये नेचर बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एट रूम टेम्परेचर ये H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडुलेटेड वाटर. एसिडुलेटेड मतलब जिसमें एसिड से डाइल्यूट किया गया हो. तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. पता नहीं तुम लोगों में से किसी ने एसिड में पानी डाला है कि नहीं, डालना ही मत, जल जाओगे. बट इट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन and it releases hydrogen and oxygen gas. So they are saying this composition takes place by means of electrical energy. Therefore it is called electrolysis. यहाँ पे electrolysis का definition है where they are saying that अगर H2O liquid में, अच्छा हाँ, दो तरीके होते हैं इसके. तो एक तो तुम एसिड पास कर दो या सॉरी एसिड डाल दो या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस बनके रिलीज हो जाएंगे. So this reaction is a part of electrolysis reaction. Electrolysis, अच्छा हाँ, ये समझना important है because the bonds are breaking, right? H2O का structure क्या होता है? देखो, structure of water. See, can you all see this? Hello, am I talking to myself? No. Yes, sir. Can you all see this? Oxygen, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन. तो अगर H2 गैस बन रहा है, यहाँ पे देखो H2 गैस बन रहा है यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना. तो होता ये है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला डायग्राम अच्छा है. हाँ, तो ये वाला जो बॉन्ड है एक, ये दोनों आपस में टूट जाते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. और जो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और रिलीज हो जाते हैं. किस फॉर्म में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं. ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर. देखो, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तुमको नेमिंग से समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा है यानी किसी का जगह कोई ले लेगा और उसको उस जगह से हटा के खुद चला जाएगा. It is saying that we saw in the beginning of this chapter that adding zinc dust into blue colored copper sulfate solution. Yeah, we saw in the beginning of this chapter that on adding zinc dust to blue colored copper sulfate solution, a colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated. वो स्टार्टिंग का रिएक्शन था ना जिसमें जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा था. तो उसमें बोल रहे हैं कि फ्रॉम दैट वी लर्न दैट Zn2+ ion formed from Zn atoms takes place of the CO2+ ions in the copper sulfate atoms, that is copper atoms formed from Cu2+ ion comes out. It means that Zn displaces Cu from CuSO4. See this reaction I will show you. This one. Can you see this one? यहाँ पे हो क्या रहा है? कॉपर को धक्का मार के जिंक उसका प्लेस ले रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है. इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक को डिस्प्लेस करके कोई दूसरा खुद को प्लेस कर रहा है. इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड. एनी एटम इज गेटिंग रिप्लेस्ड. आर यू गेटिंग मी गाइस? सो दैट वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डेफिनेशन किया उन लोगों ने. द रिएक्शन इन व्हिच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. अब तुम बोलोगे सर ये रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, जिंक और कॉपर दोनों रिएक्ट करते हैं
बट जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो रिएक्ट करेगा, वो तुरंत बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मान लो एक बेंच है, एक चेयर है और दो लोग हैं, लेट मी टेक ए गुड एग्जांपल, से मी एंड आई कैन टेक केन, मी एंड केन आर फाइटिंग, कि कौन बैठेगा उस जगह पे, तो कौन जीतेगा बताओ। केन को मैं ही पूछ रहा हूँ, केन तो बोलेगा कि मैं ही जीतूंगा, बट मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कौन जीतेगा बताओ। आप जीतोगे। ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा वेट है 95 kg, उसका वेट कितना है 40, 30, 50 में भी, ठीक है। तो होता क्या है कि ह्यूमन बींग्स के मैटर में क्या देखा जा रहा है, पावर। वैसे ही मेटल्स के मैटर में देखा जाता है कि किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन इजिली दे सकता है। जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना जल्दी बॉन्ड बनाएगा। तो कॉपर ऑलरेडी सेटल था सल्फेट के साथ, इट इज ट्रू, बट जिंक तो उससे भी बेटर था, जिंक पावरफुल भी था, मोर रिएक्टिव भी था। तो जिंक ने कहा कॉपर तुम यहाँ से निकल लो, हट जाओ। और हाँ कट जाओ, और वो खुद आ गया। तो वो वही कहना चाह रहा है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर दे आयंस फॉर्म करके, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को चैप्टर मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो डोंट वरी, ओके। अब इन्होंने 2 रिएक्शन दिया कंप्लीट करने को, वो तुम कंप्लीट करो और बताओ क्या आएगा। सिंपल है, कॉपर और आयरन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देख लो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सल्फेट के साथ रहेगा, है ना। वैसे ही कॉपर सल्फेट और लीड, पीबी मतलब लीड, आई होप यू नो दैट, पीबी स्टैंड्स फॉर लीड। तो लीड और कॉपर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देख लो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो उतना बेटर इलेक्ट्रॉन देगा और वो रहेगा, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, एक एटम यहाँ जा रहा है, दूसरे वो वाला जो है उधर हट जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये वाला उसके साथ चल जाएगा, वो वाला इसके साथ चल जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। अच्छा हाँ, डेफिनेशन पढ़ लो। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड to form a precipitate are called double displacement reaction। यानी रिएक्शन जिनमें आयंस किसको बोल रहा है पता है, आयंस उनको बोल रहा है जो मेटल्स होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं। आयंस मतलब इन द चार्ज फॉर्म, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनको बोलना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जिस मेटल्स में आयंस जो एक्सचेंज हो जाते हो और प्रेसिपिटेट बनता हो। प्रेसिपिटेट मतलब मैंने बताया था ना, देखो बताता हूँ, एक बार और सिखाता हूँ। प्रेसिपिटेट, तुम अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में ये नीचे अगर कोई सॉल्यूशन बैठ जाए ना, ऐसे यहाँ पे आके, ये देखो ये भी एक प्रेसिपिटेट ही है, ये देख रहे हो नीचे जो जो बैठे हुए हैं। कैन यू गाइस सी दिस? यस सर। ये टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ कंपाउंड आके नीचे बैठ गए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो वही बोल रहा है वो। अभी क्या बोल रहा है वो, एक्टिविटी 3 वो तुम करो अपना, और इससे डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं दिया, इसको देना चाहिए था। वेट, आई विल शो यू वन एग्जांपल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन सेकेंड ना, आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। हाँ, ये वाला एग्जांपल भी अच्छा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन चल जाएगा सोडियम के साथ और सल्फर आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। देखो क्या रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट, सल्फाइड नॉट सल्फेट, सल्फेट SO4 के लिए यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड और HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हो क्या रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, रिएक्शन हो रहा है, बाद में क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड एंड H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब जो इसका था वो इसके साथ चला गया, इसके वाले के साथ, और जो इसका था वो इसके वाले के साथ चला गया। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दे आर डिस्प्लेसिंग, बोथ ऑफ देम आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर। So that is called double displacement reaction। इनके नेम से ही तुमको आंसर अगर फील आना चाहिए, displacement, double displacement, and what was that, combination reaction, decomposition reaction। अब एक और है, endothermic and exothermic process and reaction। मैं एक लाइन में समझाऊंगा, अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है, नहीं तो तुम पढ़ते रह जाओगे और थक जाओगे। इंडोथर्मिक में रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन हीट रिलीज करता है। अब ध्यान में कैसे रखोगे, दिस इज एक्स राइट, एक्सो मीन्स समथिंग लाइक ऑटो साइड, so if exothermic means heat is released in the reaction
एंड एंडोथर्मिक मीन्स हीट उसको चाहिए रिएक्शन में. सो हीट इज ऑब्जर्व्ड एंड गिवन अवे, दोनों होता है एक रिएक्शन में, और उसी प्रकार से उसका नाम ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव नेम्ड इट एज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. If you can see, we are having endothermic and exothermic process. So heat from outside is absorbed due to during some physical changes. Some physical changes के कारण heat obviously from outside absorb होते हैं, जैसे कि melting of ice या dissolution of potassium nitrate in water. तुमको दूसरा नहीं पता, बट फर्स्ट तो पता है. अगर तुम आइस को निकाल के बाहर रख दो तो तुम फील करोगे कि उसके आजू बाजू का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया. क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू में जो टेम्परेचर था वो हीट जो आइस है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. सो इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस. बट तुम कुछ देखोगे कि कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कि दे आर सेइंग दैट हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर. अगर वाटर से आइस फॉर्म करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम करना पड़ेगा वाटर का, इसलिए उसको फ्रीज में रखते हैं. इसलिए उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है. They have a second example also, dissolution of sodium hydroxide in water. You can also make a note of this. Exams में पक्का पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में कि डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. तो तुमको पता होना चाहिए कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका आंसर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है. इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, यानी जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, यानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो उसको डाइल्यूट करते हैं. डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर से. तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर गेट्स इवापोरेटेड इंस्टेंटेनियसली. बिकॉज ऑफ द हीट रिलीज द वाटर गेट्स इवापोरेटेड इंस्टेंटेनियसली व्हेन इट इज poured in the concentrated sulfuric acid. ओके, तो क्या बोलना चाह रहा है वो, कि अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे तो वाटर वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, और वो हीट के कारण हो सकता है कि वाटर जो है ऑटोमेटिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो दे आर सजेस्टिंग टू अवॉइड दिस, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर and a small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring. यानी वाटर को एसिड में मिलाने की जगह वो ऑलरेडी वाटर का एक ग्लास में लेते हैं और उसमें धीरे धीरे करके मिक्सिंग करते हुए एसिड को मिलाते हैं. इससे एसिड डाइल्यूट भी हो जाता है, वाटर इवापोरेट नहीं होता, क्योंकि हीट उतना रिलीज नहीं होता. उतना नहीं रिलीज होता, हीट फिर भी रिलीज होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. ओके, now they are probably giving a practical to carry out endothermic and exothermic process. कर लेना तुम ये और फिर देख लेना. ये देखो उसने डेफिनेशन भी दिया, द प्रोसेस या द रिएक्शन इन विच हीट आर गिवन आउट और कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ दे हैव, अभी तो उन्होंने बताया प्रोसेस, अब रिएक्शन पे आ गए. मतलब अब हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वैसे रिएक्शन का, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हीट रिएक्शन के पहले ही दे रहे हैं, रिएक्टेंट को हीट देना पड़ रहा है, इसलिए ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. बट अगर तुम ये देखोगे तो इसमें हीट प्रोडक्ट साइड में, यानी हीट बन रहा है रिएक्शन के बाद, हीट रिलीज हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So there is an exchange of heat in chemical reactions as well. Accordingly, some chemical reactions are exothermic while some other are endothermic. During exothermic chemical reaction, heat is given away when reactants are transformed into products, while during endothermic chemical reaction, it is either absorbed from the surrounding or has to be supplied. अब यहाँ पे तो तुमको पता चल रहा है कि ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, क्योंकि अगर देना पड़ता तो यहाँ पे डेल्टा साइन आता, ट्रायंगुलर सिंबल. ओके, मतलब यहाँ पे भी ये भी एंडोथर्मिक ही है, बट ये जो हीट है वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है. ठीक है गाइस, एनी डाउट? एनी डाउट टिल yet? टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज over. Anyone having any doubt? No, sir. Who is Krish Fernandez? Anyone knows? Everyone knows. Everyone knows. Okay, means I only know. I will allow him then. कितने लोग हैं आज? 15. Okay. Now we are going to. Now we will read about a rate of chemical reaction. अब rate of chemical reaction क्या होता है? You will be thinking about it, but if you will try to think, like अगर तुम ध्यान से सोचोगे, you will focus, you will understand.
some chemical reaction will happen very fast, right? But some of them take lot of time. Now let's see what are the ones that take happen very fast. Like iron को rusting में जाना हो तो बहुत time लगता है ना? Am I correct? Yes, Am I sir. correct? So इसका rate of chemical reaction बहुत slow है. क्यों? क्योंकि ये होने में बहुत time लग रहा है. हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट पेज में. So yeah. So it is saying that the same reaction occurs at a different rate on changing the condition. For example, during winter long time, okay, winter में अगर winter season में तुमको अगर milk into curd setting करना है, मतलब अगर तुमको दही बनाना है from milk, so it will take a long time. Whereas in summer, the rate of setting of milk into curd will increase, and curd will take little less time. You can ask this question to your mom. They also know this. कि विंटर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है दही बनने में और समर में थोड़ा कम टाइम लगता है. So what they're trying to say is converting of milk into curd is also a chemical reaction, and you can see that their rate differs. Anyone has any doubt? No doubts, right? Then we are going to learn about factors affecting the rate of chemical reaction. यानी कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम rate of reaction को affect कर सकते हैं. अफेक्ट कर सकते हैं मीन्स उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या उनकी स्पीड कम कर सकते हैं. ये कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे. वेरी सिंपल इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर क्या है देखो. On reaction of both aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid, H2 gas is liberated and water soluble of these metals are formed. अगर एल्यूमिनियम एंड जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक यानी थोड़ा वीकर एसिड से रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट्स यानी जो वाटर में सॉल्यूबल हो वो सॉल्ट्स मेटल्स के बनेंगे. हाउएवर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस फास्टर एज कंपेयर टू जिंक मेटल. एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन फास्टर होगा जिंक मेटल से. क्यों? क्योंकि nature of metal is responsible for their difference. Aluminium is more reactive than zinc, so aluminium will react faster than zinc. Therefore, rate of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than that of zinc. Nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. Obvious सा बात है कि नहीं? obvious सा बात. जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो उतना जल्दी रिएक्ट करेंगे. अब देखो नेक्स्ट क्या है. साइज ऑफ पार्टिकल्स. शाहाबादी टाइल्स याद रखना. ये इसमें एक पैराग्राफ है शायद. देयर इज अ पैराग्राफ इन दिस पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू शाहाबादी टाइल्स एंड सी या इट इज हियर साइज ऑफ पार्टिकल्स. सो दे आर सेइंग दैट यू हैव फाउंड इन द अबव एक्टिविटी. ओके, एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं वो लोग कि पीसेस शाहाबाद टाइल का 2 इक्वल वेट लो और 2 टेस्ट ट्यूब में लो. एक में पीसेस लो दूसरे में पाउडर लो और तुम देखोगे कि पाउडर वाले में रिएक्शन ज्यादा फास्टली होगा इंस्टेड ऑफ पीसेस. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? Can anyone tell me why? Someone is saying something, but I cannot hear it. Who is that? Okay, let me tell you how. जब reactions होते हैं ना तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन में जाते हैं. They come in contact and they react. So if you will see शाहाबाद टाइल्स, इन केसेस में क्या होता है, जो पीसेस होते हैं उनका रिएक्टेंट का एरिया कम होता है. मतलब जो पाउडर्ड होते हैं वो ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. पीसेस का सरफेस एरिया कम होता है. जब सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि वो पीसेस में होते हैं तो उनका रिएक्शन भी स्लो होता है. लेकिन अगर वो पाउडर्ड में होगा तो उसका हु इज डूइंग दिस मुझे पता करने में टाइम नहीं लगेगा. एक बार गूगल करूंगा मेरे को सब पता चल जाएगा. लेकिन फिर मैं उस लड़के को क्लास में घुसने तक नहीं दूंगा, याद रखना.
इवन नॉट इवन इन द ऑफलाइन क्लासेस, थोड़ा बहुत करते हो मुझे भी अच्छा लगता है, चलो एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये हर बार घुस जाता है एंड आई विल लिटरली फाइंड इट आउट एंड देन नो वन किसी को पता भी नहीं चलेगा और अगली बार से तुम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इधर से ब्लॉक कर दूंगा तुम्हारी आईडी को। ऐसा भी करता हूं मैं, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ो अच्छे से। सो शाहाबादी टाइल्स के जब पीसेस हो जाएंगे ना तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा उतना ज्यादा एक्सपोजर होगा उसका, उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा, इसीलिए। ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ऑब्वियसली अब एसिड है और डाइल्यूट है यानी वीक एसिड है तो उसको रिएक्ट होने में कम टाइम लगेगा, और अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्ट होने में तुरंत हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक ए पर्सन हु इज वेरी लेजी एंड हु इज वेरी एक्टिव। अगर पर्सन वेरी लेजी है तो उस काम को करने में बहुत टाइम लगाएगा, एंड इफ द पर्सन इज वेरी एक्टिव ही विल डू इट क्विकली। सो 10 minutes remaining. So it is saying that dilute HCl reacts slowly with CaCO3, that is calcium carbonate, and thereby calcium carbonate disappears slowly and CO2 is also liberated slowly. If you take concentrated HCl, CaCO3 will disappear very fastly and the reaction will take very rapidly. So what you come to know from here is concentrated acid will react faster than dilute acid, which means that rate of reaction is proportional to the concentration of reactants. ये बात इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है यानी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ज्यादा है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम है यानी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है। देन वन मोर थिंग इज दैट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अब ऑब्वियसली तुम हीट करोगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा एनर्जी आएगी तो वो ज्यादा एक्टिव होंगे, और ज्यादा एक्टिव होंगे तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो व्हाइल स्टडीइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू हैव कैरिड आउट डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। इन दिस एक्टिविटी द लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइमस्टोन बिकॉज ऑफ द जीरो रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द रेट ऑफ रिएक्शन increases on increasing the reactant। तो ये बात तुमको क्या पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पार्टिकल साइज छोटा करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और कम रिएक्टिव होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। देन वी हैव कैटलिस्ट, जिसके बारे में सुनते आए हैं, आज वो फाइनली हमारे सामने भी आ गया। कैटलिस्ट मैंने बताया था आपको, the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes, याद रखना, changes not changes without causing any chemical change to it। यानी वो कैटलिस्ट को कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, बट वो वापस से रिएक्शन में रिकवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। So it is saying that this reaction potassium chlorate, इसका नाम है potassium chlorate। So if you heat it, it decomposes very slowly। Rate of above reaction neither increases by reducing the particle size। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर तुम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैंगनीज है ये, मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत करना, अगर तुम थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दो तो ये रिएक्शन जो है वो फटाफट होगा, और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है रिएक्शन के लास्ट में रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है। Similarly, it is saying that the decomposition of hydrogen peroxide into water, अभी ऊपर पढ़ा था ना, H2O2 is hydrogen peroxide into water, it means H2O, and oxygen, it means O2, takes place slowly at room temperature। अगर यही तुमको अगर इसी को फास्टर रेट पे करना है तो इसमें भी थोड़ा मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दो। तो what we come to know from here is that manganese dioxide is a good catalyst that can help to increase the speed of reaction। But that doesn't mean all the catalyst will increase the speed of reaction। Some of the catalyst will slow also, like कुछ catalyst उनका speed of reaction भी slow कर सकते हैं। फिर इसके बाद oxidation and reduction। I hope you remember, अभी हम लोगों ने इधर पढ़ा था कि oxidation and reduction क्या होता है। I think आज हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फिर एनसीडीटी तो तुम खुद से पढ़ना।
Her answer is just paragraph. So यहाँ से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. चलो, किसी को कोई डाउट है? चलो अपना माइक एंड वीडियो दोनों ऑन करो. हाय प्रेरणा, हाउ आर यू? आर यू स्लीपिंग? You're sleeping, right? Prerna is sleeping. She's still not able to say anything because she was sleeping. Okay. Cane sits at one position always. I have seen that. Cane का एक पोजीशन फिक्स है, वो उधर ही बैठता है, वो खिड़की के बाहर ही बैठता है. क्या है मुझे पता नहीं, क्या खिड़की के बाहर है के अंदर है, मुझे पता नहीं. प्रेरणा का तो टेबल फिक्स हो गया है. एंड आई थिंक, I don't know why Kenneth keeps his phone like this, I assume. Because you can see his entire face, you know. Okay, guys, you have any doubt? Pearl? Pearl? No. Lisa, you have any doubt? Kajal? Tumko? Lean, hi, good morning. Are you awake? Sir, no doubt. No doubt, okay. Vishwas, can you hear me? Yes, you have any doubt? No. Yes, sir. क्या किसको डाउट है? विश्वास को है क्या डाउट? No, sir. अच्छा, फटाफट जिनको कोड पता है जरा थम्स अप देना. जिनको कोड पता है जरा थम्स अप देना. मेरे को जानना है कोड किसको नहीं, किसने को कोड नहीं पता. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9. विश्वास, you know the code? Yes, sir. I was present in morning. Oh, you were present in morning. Irish, do you know the code? Irish. Yes, sir. You know the code? Yes. सबको पता है फिर तो. क्या कोड तुम लोगों ने हल्ला कर दिया रहेगा. So guys, you can leave now. Half an hour we have learned something. 35 minutes. No, I think accurately 30 minutes. Okay, starting के 10 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं. हाँ, हेलो, बाय बाय. कैसे हो? सो रहे हो? जाग रहे हो? वीडियो कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो. But 30 minutes का नेट अपना टाइमिंग है. And Prerna is saying something. I don't know to whom. I cannot even hear you, Prerna. We cannot hear you, Prerna. अच्छा, प्रेरणा शायद 2 स्मार्टफोन यूज कर रही है. ओके गाइस, बाय एवरीवन. वी विल मीट टुमारो अगर कल क्लास हुआ तो, वरना जो टाइमिंग है उसको फॉलो करो और कीप रिवाइजिंग. बीच में कई बार ऐसा है कि 2-3 दिन का मेरा क्लास नहीं है, उस टाइम पे छोड़ मत देना. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू वांट, इफ यू वांट, यू कैन लीव द क्लास. बाय. Bye, sir. Bye, sir. Prerna, you have any doubt? हेलो, इसका आवाज नहीं आ रहा है. चलो फिर मैं एंड करता हूँ. I don't know any code. Oh my god. Okay, you don't know any code, Prerna. I cannot hear you, Prerna. Not at all. I cannot hear you. तुम्हारा माइक खराब हो गया रहेगा ईयरफोन का. हैंड्स रेज है, मुझे पता है. Can you hear me? Can you hear me? Yes, okay, you can hear me. Okay, no issues, Prerna. Bye. We'll meet in the next class. Fix your mic till then.